પ્રકાંડ અને જેના દ્વારા આપણે ભૌતિક અને આધ્યાત્મિક ઉન્નતિની આકાંક્ષાવાળા માણસો, સંસારમાં પડેલા માણસો, ડગલે ને પગલે આપત્તિ આવતી હોય તે સમયે એક અમોઘ કવચ બનીને આપણી સામે ઉભું રહે છે. અને એક સમર્થ વ્યક્તિ કે જે એમ કહે છે કે શિષ્ય તરીકે સ્વીકાર કરું છું અથવા તો મંત્ર આપે છે, પછી આપણે કોઈ ચિંતાનું કારણ રહેતું નથી. અને હકીકત છે કે એક વાર દીક્ષા લીધા લેનાર શિષ્યનું અહિત થતું નથી, અહિત થયું નથી, અત્યાર સુધી અહિત થયું નથી, ભવિષ્યમાં થવાનું પણ નથી, ખાતરી છે એની. એટલે આ એક બહુ વિરાટ ગુરુ પરંપરા જોડે આપણે જોડાઈ રહ્યા છીએ. એક દિવ્યતમ આશ્રમ ની જે સિદ્ધ વ્યક્તિ છે, આપણે ન ઓળખી શકીએ ચર્મ ચક્ષુથી, એના માટે તો દિવ્ય ચક્ષુ જોઈએ. અને એની કિંમત આપણે ન આપી શકીએ તો એમાં વાંક આપણો છે. સમર્થતા તો અહીંયા બેઠી છે, સમર્થ તો અહીંયા છે, અને સમર્થ પાસે પહોંચવા માટે અસમર્થતા જોઈએ. એમના પગમાં પડી જવાનું હોય ત્યાં તો ચાલવાનું ના હોય, વહાં તો પહોંચના है और जीत कर पहुंचना है. चल के आज तक कोई पहुंचा नहीं समर्थ के पास. समर्थ के पास तो आंखों में अश्रु और देह में कंपन चाहिए. आंखों में अश्रु इसलिए कि हम अपनी आंख की गंदगी को धो डाले, पवित्र होकर दर्शन कर सके. और कंपन इसलिए अश्रद्धा नहीं है, लेकिन ये अपवित्र देह उन चरणों तक पहुंचने के लिए काबिल है भी या नहीं. ये तो अनंत कृपा है गुरुदेव की कि वो आह्वान कर रहे हैं, ये कह रहे हैं हमसे कि हम अबूध है, अज्ञान है, फिर हमको दंडोल है, टटोल रहे. આપણે જગાડી રહ્યા છે કે તમે હવે તો જાગો. અને આવું વ્યક્તિત્વ શંકાદારે પછી મેં તો કોઈ જોયું નથી, વાંચ્યું પણ નથી, ખબર નથી. દીક્ષા આપવા માટે પાછળ ફરનાર શિષ્યો ને ગુરુ દીક્ષા આપતો નથી, ચરણ સ્પર્શ કરવા દેતો નથી. ખબર નહીં કઈ એમની વિચારધારા છે. અહીંયા આગળ સમર્થ વ્યક્તિત્વ બેઠું છે, ચરણ સ્પર્શ કરવાની છૂટ છે, લઈ જાઓ તમારી જોડીમાં, તમારે જેટલું લઈ જાઓ એટલું લઈ જાઓ, તમારા તાકાત જોઈએ. આટલી સમર્થતા આટલું ગયા પછી પણ જો ન જાગનાર હોય તો એને કોણ જગાડી શકવાનું છે? જે માણસ છાણનો કીડો બનીને જીવવા માટે સર્જાયેલો હોય એને પુષ્પની સુગંધ કે સ્વર્ગનો આનંદ પ્રાપ્ત કોણ કરાવી શકવાનું છે? આ તો હૃદયની વેદના છે, વ્યથા છે. આપણા કરતા તો અનંતની વેદના વ્યથા એમની છે, પિતા છે, પરમ પિતા છે. અને પુત્રના દુઃખ માટે પિતાને દુઃખ થાય એટલું કોઈને દુઃખ ન થાય. અને એ વ્યથાને કારણે અત્યારે ગમે ત્યાં હિન્દુસ્તાનના ખૂણામાં બોલાવો ત્યાં આવે છે, તાપમાં, તડકામાં, વરસાદમાં, ગમે ત્યાં. આ એમની મહાનતા છે. એમની માટે શું કરી શકીએ આપણે? આપણે કંઈ પણ કરી શકતા નથી. આપણી પાસે તો માત્ર આંખમાં આંસુ છે, માત્ર આપણા હૃદયનો ભાવ છે, માત્ર સમર્પણ છે. એ પણ જો પૂર્ણ આપણે કરી શકશું તો માનું છું કે એમણે આપણે સીધા પુષ્પ ચડાવ્યા છે. એમની આટલી બધી હૃદયપાત પછી પણ, એમની આટલી બધી 24 કલાકની કામગીરી છતાં પણ જો આપણે એવા ને એવા ઠૂઠ રહેવાના હોઈએ, આપણે કઈ જ ન કરવાના હોઈએ તો એનો અર્થ કોઈ નથી. અને પછી કોણ લગાડશે? આ તપ છે, અત્યારે જ જાગી જવાની આ સમય છે. હવે પછી પુનરાપી નામ પુનરાપી મરણમ 24 લાખ યોનિમાં ભટક્યા કરવા સિવાય આપણો કોઈ આરો નથી. કોઈ આવીને કહેવાનું નથી કે જાગો, હું તમને દીક્ષા આપું. કોણ કે છે આવું? બધા સ્વાર્થમાં હત્યા પચ્યા છે. સૌ સમાજના સંબંધીઓ, સગાઓ બધા સ્વાર્થની આસપાસ તમારી છે. એક વ્યક્તિ ગુરુ એવો છે કે જે નિર્દેશ, બિલકુલ નિર્લેપ ભાવે, એમને કાંઈ જોઈતું નહીં, આપવા માટે આવેલા છે. એમને જોઈએ છે માત્ર સમર્પણ. એમને જોઈએ છે માત્ર જે હેતુ માટે, જે લક્ષ્ય માટે, જેને જીવન સમાજને જાગૃત કરવા માટે, પ્રાણ ચેતના રહેવા માટે એમનું જે કાર્ય છે એ કાર્યમાં સમર્પિત ભાવ જોઈએ છે. બીજું કઈ જોતું નથી. અને આજે એ અમૂલ્ય ક્ષણ આપણને પ્રાપ્ત થઈ છે. મારી આપ સૌને નમ્ર પ્રાર્થના છે, વિનંતી છે કે અહીંથી પ્રદાન થાય છે એનો ખુલ્લા હૃદય પૂર્ણ સમર્પણ ભાવથી સ્વીકાર કરો. આ અમૂલ્ય ઘડી, અમૂલ્ય અવસર જીવનમાં ભાગ્ય જ પ્રાપ્ત થાય છે. સપ્ત જન્મમાં પણ ભાગ્ય પ્રાપ્ત થાય એવો આ સમય છે. એ તમે એનો પૂરેપૂરો ઉપયોગ કરો. પૂજ્ય ગુરુદેવ કી જય. ज्ञानो वदाम्पि परिपूर्ण नित्यम् आतुर्यमाणमचलं भवतं सदीयम् ब्रह्माण्डरूप जलधिं कल भी मैंने अपना प्रवचन का प्रारंभ शंकराचार्य के श्लोक से किया था और आज भी उस सुनिष्ठ व्यक्ति
शंकराचार्य के श्लोक से आप सब लोगों के सामने एक महत्वपूर्ण क्षण को लाने की कोशिश कर रहा हूं। शंकराचार्य ने श्लोक में कई बातें स्पष्ट रूप से बताई हैं जो हमें समझनी चाहिए। इसलिए समझनी चाहिए कि उन्होंने जीवन का एक मापदंड रखा, एक जीवन का एक स्टैंडर्ड रखा, एक स्तर रखा। उन्होंने जीवन की एक परिभाषा दी, एक जीवन की चेतना दी। यूं तो हर व्यक्ति जीवन जीता है। कल मैंने अपने प्रवचन में कहा कि जीवन जीना कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है तुम्हारी। तुम सांस ले रहे हो, ये कोई बहुत बड़ी महानता नहीं है तुम्हारी। तुम अपने घर में 2-3 बच्चे हैं और 5-7 लाख रुपए, ये कोई बहुत बड़ी महानता नहीं है तुम्हारी। ये जीवन की उच्चता है ही नहीं तुम्हारी। ऐसा तो करोड़ों व्यक्ति हैं जैसे तुम हो। जीवन की महानता इस बात में है कि तुम अपने जीवन को समझ सको, और नहीं समझ सके तो कोई तुम्हें समझाने के लिए कोई खड़ा नहीं है। किसी को इतनी अवसर भी नहीं है, किसी को इतना समय भी नहीं है कि तुम्हें समझाए एक एक को। कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हें समझाए और तुम समझो। जब आज से 40,000 साल से ऋषि मुनि योगी सन्यासी तुम लोगों को समझाते समझाते थक गए और समाप्त हो गए। ईसा मसीह सूली पर टंग गए, सुकरात ने जहर पी लिया और राम समाप्त हो गए, कृष्ण समाप्त हो गए, बुद्ध समाप्त हो गए, महावीर समाप्त हो गए। और उन सब ने एक ही कोशिश की कि तुम्हें समझाएं कि जीवन की पूर्णता, जीवन का उद्देश्य, जीवन का लक्ष्य, जीवन का सत्य क्या है। अगर तुम समझो ही नहीं तो मैं तो एक बहुत छोटा सा आदमी अभी नहीं समझा सकता। मेरे आने के बाद में कोई पीढ़ियां होगी वो भी नहीं समझा सकेगी। और यदि समझ गए तो एक क्षण में आगे समझ जाएगा, फिर उसको कोई समय नहीं लगता। समझने के लिए पूरा जीवन नहीं चाहिए, समझने के लिए एक क्षण चाहिए। एक ऐसा क्षण की या तो इस पूरे जीवन को चैलेंज के रूप में उठा लेना है या फिर जीवन को घिसटते हुए बिता देना है। और अधिकांश कायक व्यक्ति जीवन को घिसटते हुए बिता देते हैं। चुनौती का भाव उनके जीवन में नहीं होता, चैलेंज नहीं होता। और जो चैलेंज नहीं ले सकते वो मनुष्य नहीं बन सकते। मनुष्यता के लिए सबसे पहली सीढ़ी शंकराचार्य ने यह कहा है कि चैलेंज हो, एक अपने आप को फना कर देने की, अपने आप को बलिदान करने की, अपने आप को उछाल देने की क्रिया हो। इसलिए उन्होंने इस श्लोक में उन्होंने ये बताया कि जीवन तुम्हें मिला है, यह तुम्हारे प्रयत्नों से नहीं मिल पाया। यह जीवन तो तुम्हारा पितृ ऋण है। पिता ने तुम्हें जीवन दिया और जीवन देने के बाद में उन पिता ने अपने जीवन का कोई कष्ट भी तुम्हारे प्रति नहीं समझा। एक बनिया अगर तुम्हारे पिता थे तो तुम्हें तराजू लेकर के कैसे तोड़ना है ये सिखाया। अगर तुम्हारे पिता ने 4 से बच्चे पैदा किए तो सिखा दिया कि ये शादी कर ले बेटे और 4 से बच्चे पैदा कर ले। तुम्हें जीवन का कोई क्रम नहीं समझा सके, उनके पास जीवन का क्रम है ही नहीं। इसलिए शंकराचार्य कह रहे हैं कि जीवन का क्रम समझने के लिए जिस प्रकार समुद्र के पास उत्ताल लहरें होती हैं, उत्तुंग लहरें होती हैं, एक विशालता होती है जिसका कोई अंत नहीं है। यहां से हम नजर डालें तो समुद्र का कोई अंत दिखाई नहीं देता। यदि ब्रह्मांड का अंत दिखाई नहीं देता तो समुद्र का भी अंत दिखाई नहीं देता। और समुद्र का अगर अंत नहीं है तो तुम्हारे जीवन का भी कोई अंत नहीं है। जीवन को तुम हजारों वर्षों तक खेल सकते हो। कोई जरूर नहीं मृत्यु तुम्हारे सामने आ सके। मृत्यु में इतनी ताकत नहीं है, इतनी क्षमता नहीं है कि तुम्हारे आंख के सामने आके खड़ी हो सके। मृत्यु तब आती है जब हम कायर होते हैं, बुज़दिल होते हैं। जब हम भागते हैं तो हमारे पीछे कुत्ते बहुत ज्यादा भागेंगे। यदि हम डरेंगे तो मौत हमें और ज्यादा डराएगी। अगर हम बुढ़ापे से डरेंगे, बुढ़ापा हमारे ऊपर जल्दी आक्रमण करेगा। और तुम एक डरपोक की तरह जीवन भाग रहे हो कि न मालूम कब को क्या घटना घट जाए, हम मर जाएंगे तो क्या होगा। और जीवन को यदि हमने चैलेंज के रूप में उठा लिया, यदि हमने ये साधना जीवन बना दिया तो बच्चों का क्या हो जाएगा, बीवी क्या हो जाएगा, पत्नी का क्या हो जाएगा। और जीवन का ये भय तुम्हें एक सामान्य जीवन जीने के लिए मजबूर कर देता है। और मेरे कहने के बावजूद भी तुम्हारे जीवन में कोई चेतना नहीं आएगी, ये मान भी समझ रहा हूं। मेरे कहने के बाद में जीवन को उबाल आएगा नहीं तुम्हारे जीवन में। आज से 6 महीने बाद भी तुम्हें अगर कहूंगा तो फिर तुम सुन लोगे ऐसी बात, जो मैं कह रहा हूं वैसे ही सुनोगे। फिर साल में बाद में आके कहूंगा तो फिर तुम वैसे ही सुनोगे। जिस व्यक्ति में एकदम से अपने आप को बदल देने की क्रिया नहीं होती, जिस व्यक्ति में अपने आप में फना होने की क्रिया, जिसमें चैलेंज नहीं होता, जो अपने आप को उत्सर्ग करने की क्रिया नहीं जानता, वह जीवन में कुछ कर भी नहीं सकता। और जीवन में कुछ करने का मतलब है कि जीवन को समझना। जीवन में कुछ करने का मतलब, कल भी प्रवचन में मैंने कहा कि हम जीवन के अंदर की वृत्तियों को जागृत करें। इसलिए जागृत करें कि हमने क्यों जीवन लिया, जन्म क्यों लिया, प्रभु ने हमें क्यों पैदा किया, क्या उद्देश्य था, क्या हेतु था, क्रम क्या था, हमारे जीवन में दुख क्या है, क्यों है, सुख क्यों है,
क्यों नहीं मिल रहा है, हमारा जीवन अभाव क्यों है, परेशानियां क्या है, अगर ईश्वर है तो कैसा है, अगर ब्रह्म का स्वरूप है तो क्या है। हम भारतवर्ष में पैदा हुए हैं और हमारे सामने हजारों बार ब्रह्म का एक चिंतन, एक शब्द दिया है, तो कैसा है ब्रह्म। यदि हम इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे तो तुम ढूंढ भी नहीं पाओगे। अगर तुम्हारा प्रयत्न नहीं होगा तो नहीं ढूंढ पाओगे, और तुम नहीं ढूंढ पाओगे तुम्हारे आने वाली संतान भी नहीं ढूंढ पाएगी। तुम अपने संतान को कुछ नहीं दे पाओगे, वो देने के लिए क्रिया है ही नहीं। तुम ज्यादा से उनको मैट्रिक करवा दोगे, बीए करवा दोगे, उनकी शादी कर दोगे, उनको थोड़ा 2-4 लाख रुपए दोगे और शमशान में जाकर सो जाओगे कफन ओढ़ करके। इसके अलावा तुम्हारे जीवन की कोई परिणति, कोई जीवन का उद्देश्य है ही नहीं। तुम्हारा धीरे धीरे रास्ता उस शमशान की ओर जाने वाला ही रास्ता है। मगर उस रास्ते पर उस श्लोक में ही बताया कि इस पूरे रास्ते में जहां तुम चल रहे हो उसमें कोई एक क्षण आता है जहां क्षण रुक करके सोच सकते हैं, जहां सोच सकते हैं कि हम अगर हैं तो हमारे जीवन का मकसद क्या है। जीवन में किसी क्षण कोई गुरु मिल जाए, कोई जरूर नहीं जीवन में गुरु मिले, ऐसा कोई जरूर नहीं। तुम्हारे जीवन के 40 साल बीत गए, मैं तुम्हारे पास आया ही नहीं था, मिले ही नहीं। 45 साल में पहली बार मिलना हुआ और बात हुई, और वापिस चले जाएंगे, 10 साल बाद मिलना होगा, नहीं होगा। तो जीवन के पूरे लंबे सफर में कोई एक क्षण मिल जाए, और अगर हम पास में से निकल जाएं तो निकल जाएंगे, तुम्हें कोई हाथ नहीं पकड़ेगा। और यदि हम उस क्षण को पकड़ लेते हैं, यदि उस क्षण को जीवित जागृत कर लेते हैं, चैतन्य कर लेते हैं, यदि जीवन में एक चेतना आ जाती है, अगर जीवन में एक फना होने की क्रिया बन जाती है, उबाल आ जाता है, अगर जीवन में एक अपने आप में पूर्ण वृत्ति जागृत हो जाती है, सही अर्थों में शिष्य बनने की क्रिया प्रारंभ हो जाती है, दीक्षा लेने की एक भावना पैदा हो जाती है, तो तुम जीवन को समझने की क्रिया भी सीख लोगे। और जहां जीवन है वहां मृत्यु नहीं बन सकती। मृत्यु और जीवन दोनों एक साथ चल ही नहीं सकते। मृत्यु तब आती है जब तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाता है, और तुम्हारा जीवन है ही नहीं। इसलिए जीवन नहीं है, तुम्हारे जीवन में कोई चेतना नहीं है, मुर्दे में भी कोई चेतना नहीं होती। शंकराचार्य ऐसे लोगों को जीवित मुर्दा कहते हैं, कि ऐसा मुर्दे तो है जो जीवित हैं, चलते हैं, फिरते हैं। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।